ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਵਨੀਤ ਵਰਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਗੁਰੂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰੋ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈਐ, ਵਿਣ ਕਰਮੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇਪੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਦੀਆਂ 4 ਦੀਵਾਰਾਂ ਹਨ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ, ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕਿਸੇ ਵਣਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਛਾਤੀ ਠੋਰ ਠੋਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਔਰ ਸੁੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖ ਬੋਹਿਤ ਲਾਦਿਆ ਦਿਆ ਸਮੁੰਦ ਮਜ਼ਾਰ, ਕੰਦੀ ਦਿਸ ਨ ਆਵਈ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ, ਵੰਜੀ ਹੱਥ ਨ ਖੇਵਟੂ ਜਲ ਸਾਗਰ ਅਸਰਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਗ ਪਾਥਾ ਮਹਾਜਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਰਬੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੋਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੜਫ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਬਣ ਕੇ
सानू इस भवसागर तो पार कढ़ण वास्ते इंसान दे जामे विच आउंदा है और साडे वर्गी सूरत साडे वर्गी शक्ल लैके इत्थे खांदा पींदा फिरदा टुरदा सानू नजर आउंदा है। लेकिन जदों असी अपने अंदर खोज करके उस दे तसव्वुर नूं अंदर बसा के देखते हाँ, फिर पता लगता है उस दे अंदर और खुदा दे विच कोई ही फर्क नहीं है। गुरु नानक साहब महाराज जी ने इसे करके अपनी बाणी दे विच लिख दिता है, हर का सेवक सो हर जिहा, भेद न जानियो मानस देहा। इंसान की जान सकता है कि ये हरि का सेवक क्यों जिहा है। जे को आखे संत को चीना, तुलसी हाथ कान में दीना, उन्हां दी कोई उपरों परख नहीं कर सकता। जदों असी अपने अंदर जाके सहस दल कमल तो ऊपर जाके चढ़ते हाँ, फिर पता लगता है सतगुरु अंदर खड़ा है कि नहीं खड़ा है। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ सतगुरु ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੌਥੇ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। लेकिन विचार इस गल दी है, गुरु अमरदास जी महाराज जी ने बाणी विच की लिखिया है, आप समझाउंदे हन, कर्म होए तां सतगुर पाइए, बिन कर्मे पाया ना जाए। कहते ने जेकर साडे कर्म दे विच लेख दे विच लिखिया होवे तां कामल मुरशद साधु संत महात्मा दी संगत मिलदी है, नहीं तां गमांड दे विच सतगुरु वसदा होवे। देख लो करते हाँ किस तरह असी उहदे नाल गुजाइगी करते हाँ। गुरु नानक देव जी महाराज जी की हिस्ट्री पढ़ के चंगी तरह समझ आ जाती है कि आप दे लड़कियां ने भी आप नूं पूरा गुरु नहीं सी समझिया, बल्कि आप दे नज़दीकी लोगों ने आप नूं कुराइया कहना शुरू कर दिता सी, पत्थर मारने शुरू कर दिते सी। मौके दे मला दी कोई कदर नहीं करता, जान तो बाद लकीर दे फकीर बन के बैठ जाते हाँ। किसी भी महापुरुष की हिस्ट्री पढ़ के देखो, इस चीज़ की सोझी आउंदी है कि मौके ते टाइम ते उत्ते किसी नूं भी नहीं मन्निया जाता। साडे सतगुरु बाबा सावण सिंह जी महाराज या बाबा जैमल सिंह जी महाराज या स्वामी जी महाराज जी की तुसी हिस्ट्री पढ़ के देखो, आप नाल किहड़ा घट लोगों ने दुजाइगी कीती है, किस तरह आप नूं घट बद कह के आप कई जगह सत्संगां ते तो भी उठाउण की कोशिश की। ਜਿਹੜੇ दुनिया के लोग हुंदे ने, शरह वाले लोग हुंदे ने, तुसी देख लो वो किस तरह साधु संत महात्मा नाल दुजाइगी करते हैं। बुल्ले शाह फकीर की कदे हिस्ट्री पढ़ के देखो, आपने जदों मालिक नूं पा लिया अंदर, नाच करदा फिरदा है, कहते हैं बाजार दे अंदर वड़ गया, बाजार विच एक जगह जाके खड़ा होया, एक मुसलमान सुनार जिहड़ा सोने का काम करदा है उस दे पास पहुंचया, उसनू देखता है ये की करदा है, उस सोने की मुंदरी करन लग्या होया सी। उहदे नजदीक जाके खड़ा होके कहंदा है, एक रब दी उंगली विच मुंदरी पा सकदा है? उन्हें क्या है, तू रब है? उन्हें क्या, मैं रब हाँ, मेरी उंगली भी रब दी है। नहीं क्या, ये कमाल गल है। वैसे भी कई दफा राम राम रटी जाता है, खुदा नू याद नहीं करता। ये जिहड़ा बंदा है काफर है, गलत है, इसनू आपां फतवा लगा दो। क्योंकि मुसलमान लोगों ने इकट्ठे होके काफ़ी सारे बंदियां ने उसनू पूछना शुरू कर दिता, तू खुदा किस तरह है? उन्हें अखां मीट के अपने सतगुरु की याद दे विच नाच करना शुरू कर दिता। कहता ना मैं हिंदू, ना मैं मोमन, ना मैं पंडित काजी, सोनी वांग ला बुलिया तू इश्क शरीर दी बाजी। नाच करदा फिरदा है। कहते हैं बहुत वड्डे वड्डे जिहड़े उत्थे दे आगू लोग सी, उन्हां नूं बुला के उसनूं फांसी दा हुक्म दवा दिता गया। जिस वक्त बुल्ले शाह फकीर नूं नवाब ने कहा कि इसनूं फलानी मस्जिद दे अगे खड़ा करके इसका सिर ला दिता जाए, बुल्ले शाह फकीर खुशी दे नाल उन्हां दे मगर चल पिया। जिस वक्त अगे जाके खड़ा किया, दुनिया इकट्ठी हो गई। शायद पुराने लोगों नूं पता होवे
ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਲੀ ਗੱਡ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਜੀ ਨਵਾਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੂਲ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਯਾਰੋ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਂਗਲੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ? ਤਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਉਂਗਲੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁੱਲਿਆ ਤੂੰ ਇਤਨੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਖਲਵਾੜੇ ਕੀਤੇ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਬੱਧੀ ਨਾ ਇੱਕ ਪੂਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਮਸ ਦੀ ਖਲ ਲਹਾਈ, ਮਨਸੂਰ ਚੜਾਇਆ ਸੂਲੀ, ਸਾਵਰ ਦੇ ਤਨ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੀਤੀ ਨਾ ਹਾਏ ਕਰੂਲੀ। ਸਾਵਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀੜੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀੜੇ ਕਿਰ ਕਿਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਕੀਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਓਏ ਸ਼ਰਾ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਮਸ ਦੀ ਖਲ ਲਹਾਈ, ਮਨਸੂਰ ਚੜਾਇਆ ਸੂਲੀ, ਸਾਵਰ ਦੇ ਤਨ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ, ਕੀਤੀ ਨਾ ਹਾਏ ਕਰੂਲੀ। ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ? ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ? ਸੋ ਨਸੀਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੇਰੇ ਬਾਊ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਦਫਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੰਸਾਂ ਵਰਗੀ ਚਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਣੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਟਕ ਭਟਕ ਕੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਂਹ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਰਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈਏ, ਬਿਨ ਕਰਮੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ
इस शब्द के अंदर गुरु अमरदास जी महाराज बड़े अच्छी तरह सानू समझाउणगे कि गुरु की चीज है, गुरु किस तरह सानू परमात्मा नू मिलाउंदा है, गुरु की कितनी कुसत करनी चाहिए है, गुरु नाल किस तरह मिलना पैंदा है, जब गुरु मिल जाता है वो सानू की बना दिंदा है, अगे दसणगे। हाँ जी। कर्म होवे ता सतगुर पाइए, बिन कर्म पाया न जाए। सतगुर मिलिए कंचन होइए, जहर की होए रजाए। पहले तो गुरु साहब ने कहा सी जे कर्मां दे विच लिखिया होवे तो सतगुरु की प्राप्ति हुंदी है। हुण दसदे ने जे मिल जावे फिर की बन जाता है। कहते ने सतगुर मिलिए कंचन होइए। जिस तरह लोहा मनूर जिहड़ा हुंदा है वो पारस दे नाल लगन नाल सोना बन जाता है। पलटू सा महात्मा लिखते हैं, पारस के प्रसंग से लोहा महंग बकान, लोहा महंग बकान छुए से कीमत निकरी, चंदन के प्रसंग चंदन भई बन की लकड़ी। कहते ने चंदन दे नाल लगन नाल बनदी लकड़ी जिहड़ी है वो भी चंदन बन जाती है। पर एक दरखत जंगल दे विच इहो जिहा भी हुंदा है जिहड़ा चंदन दे नाल मुੱਢ भी खड़ा होवे कदे चंदन नहीं बन सकदा। वो किहड़ा? वो बांस हुंदा है। बांस दी की बांस दी दे विच की हुंदा है? अग्नि हुंदी है। बांस अगर सुक जावे, बहुत सारी हवा चलती होवे, आपस विच रगड़ा खा खा के आप भी जल जाता है, परिवार नूं भी फूक दिंदा है। इसे तरह जिहड़े साकत नर हुंदे हन वो अपने आप तां सड़ ही जाते हैं और अपने परिवार नूं अपने संबंधियां नूं भी दुखां विच पा दिंदे हन। गुरु साहब इहे जे साकत नरां नूं तारन वास्ते इंसान दे जामे विच आउंदे हन, क्योंकि महापुरुष दसदे हन पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान। वह लोहा सोना करे वो कर ले आप समान। सिर्फ पारस जिहड़ी है लोहे नूं सोना बना सकती है, लेकिन पारस नहीं बना सकती। सतगुरु जिहड़ा है वो की कर सकता है? वो अपने वर्गा बना लैंदा है। कहो नानक गुर ते गुर होया, देखो तिसकी रजाए, एक कारण करता करे ज्योति ज्योत बुलाए। जदों गुरु मिल जाता है सानू सोना बना के, सानू पारस बना के अपने नाल ही मिला लैंदा है। इसे तरह भाई गुरदास भी अपने 12 विच लिखते हैं, कहते ने सतगुर पारस परस के कंचन करे मनूर मलीना, सतगुर बावन चंदनों बास सवास करे लाखीना। कहते ने सतगुरु लखां करोड़ां जीवां नूं अपने नाल मिला के गुरमुख बना दिंदा है। जिस तरह जंगल दे विच एक चंदन दा बूटा हुंदा है, जितना भी सारा जंगल हुंदा है खुशबू दे नाल भर जांदा है। इसी तरह गुरु साहब सानू दसदे ने कि ऐसा गुरमुख जदों साधु संत महात्मा इंसानी चोले विच इत्थे दुनिया विच आउंदा है, वो इत्थे आके एक चीज दा होका दिंदा है। उस दे परमाणु, उस दी आवाज जिथे तक पहुंचदी है वो सब नूं कंचन बना दिंदा है, पारस बना दिंदा है, भवसागर तो पार कर दिंदा है। बार बार 84 दा जेल खाना नहीं मिलता। वो गुरमुख जदों भी आउंदे हन उन्हां दियां अखां खुलियां हुंदियां हन, अंदरों देखदे हन किहड़ियां किहड़ियां रूहां हन, किहड़े किहड़े लोग अधिकारी हन, उन्हां नूं चुक के सचखंड दे विच लिजा के पहुंचा दिंदा है। तुसी कदे दरियाई लाल कपूर दी धरती ते स्वर्ग पढ़ के देखो, आपने एक जगह लिखिया है, कहंदा बाबा सावन सिंह जी महाराज एक दफा बहुत सख्त बीमार सी। मैं अर्ज कीती कि सच्चे पातशाह आप अज 4 बजे दे सत्संग ते ना जाओ, किसे प्रीचर कोलों सत्संग करा लेंदे हाँ।
हजूर महाराज जी ने कहा ये तन खेर बाद च केड़ा काम आना है, कोई गल नहीं, जे थोड़ा बहुता बुखार है कोई गल नहीं, मैं जरूर चलांगा। कहता है मैं सोचता सी हजूर महाराज जी अज आके बैठे, कहता मैं उन्होंने चेहरे की तरफ नूं देखिया, चेहरा लाल वंगण दगन लग्या होया सी, बड़ा सुंदर नजर आंदा सी। कहता थोड़ी देर बाद हजूर महाराज जी ने जिस वक्त अपना मुखारविंद चों लफ्ज कहने शुरू कर दिते, कहते इस तरह टणकदे सी, एडी सुंदर आवाज सी, कहता मेरा हिरदा मोया चलिया जा रहा सी, बहुत आनंद आंदा सी। कहता हजूर महाराज जी ने 2.5 घंटे सत्संग किया। 2.5 घंटे सत्संग करन तो बाद हजूर महाराज जी आराम करने वास्ते चवारे विच चढ़ गए। कहता मैं नीचला दरवाजा बंद करन लग्या होया सी। मैं सोचा हजूर महाराज जी की सेहत खराब है, इस करके मैं नीचला दरवाजा बंद कर देवां ताकि कोई मिलने वाला ना आ जाए। कहता मैं जो दरवाजा बंद ही करदा सी, एक बंदा दौड़िया दौड़िया आ गया। उसने आके कहा भाई साहब एक सेकंड ठहरियो, मैं हजूर महाराज जी नूं मिलने वास्ते आया हाँ। कहता मैं क्या तुसी लोग महाराज जी की सेहत का कोई ख्याल नहीं करते, परवाह नहीं करते। हजूर महाराज जी नूं इतना बुखार है, वो हुण आराम करने वास्ते ऊपर चढ़े हैं, तुसी फिर मगर दौड़े आउंदे हो, अज नहीं उन्हां दे दर्शन हो सकने, कल नूं कर लेना। वो कहता है भाई साहब मैं मेरठ तो चल के आया हाँ, इस करके मैनू कृपा करके हजूर दे दर्शन करा दे, मैं कल नूं अपनी ड्यूटी ते पहुंचना है। कहता मैनू बड़ा गुस्सा आया। कहता मैं सुरक्षित ख्याल था सी, मैं दरवाजा बंद करके मैं सोचा ये लोगों ने तो तंग ही करना शुरू कर दिता है। कहता मैं दरवाजा बंद करके ऐसा ऐसा हजूर महाराज जी के कोल चले आ गया। जब पलंग के नजदीक जाके बैठा, मैनू कहते कपूर साहब एक बंदा आया सी मेरठ तो, कित्थे चले आ गया। कहता मैं क्या सच्चे पातशाह आया तो सी पर मैं अंदर वड़न नहीं दिता। कहने उन्हें जरूर लेके आ। कहता मैं नीचे गया, दरवाजा खोलिया, मैं सारा डेरा ढूंढ के थक गया, मैंने बंदा नहीं लभ्या किते भी। कहता जिस वक्त मैं सारे ढूंढ ढांढ के आया, मैं रो रहा सी, तैं अपने सिर दे उत्ते एडा वजन क्यों ले लिया, अज क्यों उस बंदे नूं रोकिया, पता नहीं की गल सी। कहता जिस वक्त मैं बरांडे दे विच आया, एक कूणे नाल लग्या होया ओ प्रेमी रोण लग्या होया सी। कहता मैं उसने नजदीक जाके कहा भाई साहब आओ, तुहानू हजूर महाराज जी बुला रहे ने। कहता वो भी पुब्बा मार के रोन लग गया तो मैं भी रोन लग गया। हजूर महाराज जी के चरणों के विच जाके बिठाया। हजूर ने पूछा कित्थों आए हो भाई साहब। कहता जी मैं मेरठ से आया हाँ, मुलाजम हाँ, अज छुट्टी सी आपके दर्शनों नूं आया हाँ, नाम की प्राप्ति करने वास्ते आया हाँ। हजूर महाराज जी ने कहा कल नूं नाम ले लियो। कहता सच्चे पातशाह कल तो ड्यूटी करनी है जाके। हजूर महाराज कहने लगे कपूर साहब दरियाई लाल जी जाओ, तुसी दरवाजा बंद करके नीचे खड़े हो जाओ। नीचे दरवाजा बंद कर दिता और उत्थे वो खड़े हो गए। हजूर महाराज जी ने उसे वक्त उसनू नाम बख्श दिता। जदों नाम लैके रात नूं अपना बिस्तरा चुक के गड्डी चढ़ के मेरठ पहुंच गया। 5-7 दिन उत्थे रहा। 5-7 दिन के बाद बेचारा बीमार हो गया, उसकी डेथ हो गई, मर गया बेचारा। जदों मरिया ओदे घर वालियां ने हजूर महाराज जी नूं चिट्ठी लिखी। ओदे ते लिखिया सी कि आप दा सेवक फलाना बंदा स्वर्गवास हो गया है, मर चुका है। आपने बड़ी कृपा की, मरण दे टाइम आपने उसकी संभाल की, बहुत खुशी दे नाल तन नूं छड्ड गया है। हजूर महाराज जी उस चिट्ठी नूं उल्टा उल्टा के पढ़ पढ़ के देखते सी। कपूर साहब आ गए। कपूर साहब ने कहा कपूर साहब जरा चिट्ठी पढ़ के देखियो तो की लिखिया है। कहता जब मैं चिट्ठी पढ़ी, कहता मैं होर भी पुब्बा मारनिया शुरू कर दी। पता नहीं सी सच्चे पातशाह मैं किड्डा जुल्म कर दिता सी उस बंदे नूं, उस दिन कढ़ दिता सी। देखो सतगुर पूरा किस तरह साडे ते मेहर करता है, किस तरह दया करता है, किस तरह इस सागर तो सानू पार लाउंदा है। इस तरह गुरमुख सानू दसदे हन ओए कंचन की सोना तो दुनिया दी चीजां हन, मिट्टी है वो की कर दिंदा है, वो सानू रब बना दिंदा है, मालिक दे नाल मिला दिंदा है। इस करके गुरु साहब इत्थे इशारा करके समझाउंदे हन, सतगुर मिलिए कंचन होइए,
ਤਾਂ ਹਰ ਜੇ ਹਾਜਾਂ ਹਰ ਕੀ ਹੋਏ ਰਜਾਏ, ਪਰ ਜੇ ਹਰੀ ਦੀ ਰਜਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੀਵਨ ਵਧੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਕੂਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤੈਂ ਭਵਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗ ਹਰ ਚੇਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਾਗ ਔਰ ਹਰੀ ਨੂੰ ਚੇਤ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਰਾਖ ਲੈ ਕੂੰਜ ਪੜੇਗੀ ਖੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਕੂੰਜ ਨੇ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਚੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਭਰਾਵਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਢੂੰਡ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਆਪ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਢੋਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜੂ ਉੱਥੇ ਫੇਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇ। ਗੁਲੇ ਮਕਸੂਦ ਪਾ ਸਕਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਰਤ ਕੇ ਦੀਵਾਨੇ, ਜਿਨੇ ਪੁਰਖਾਰ ਰਾਹੋਂ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਉਸ ਗੁਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਲੇ ਮਕਸੂਦ ਪਾ ਸਕਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ਰਤ ਕੇ ਦੀਵਾਨੇ, जिन्हें पुरखार राहों से गुजर जाना नहीं आता। तलाशे जस्तजू लाजम है दोस्त मगर गौहर उसे पा सकते नहीं है वो जिन्हें मिट जाना नहीं आता। जिन्होंने अपना आप ही नहीं मिटाउना आउंदा, उच्ची गर्दन करके चलते रहते हैं, उन्होंने किस तरह कुछ प्राप्त हो सकता है। ये सतगुरु तो बहुत वड्डी पावर हुंदी है, मेरा कर दिंदा है। मैनू गल याद आ गई, कल दी गल ये है, कल मैं सिद्धवां भेंट सत्संग करने वास्ते हजूर महाराज जी का जन्मदिन का करने वास्ते गया। ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਿੱਧੀ ਇੱਥੋਂ ਗਈ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਲੋਕ ਤੜਫਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਾਪਸੀ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਚੜਿਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਰਾਵਾ ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਤਸੰਗੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 3 ਲੜਕੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨਿਆਂ ਦਾ ਛੱਪਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 3 ਬੱਚੇ ਛੱਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਆਪ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਆਪ ਜਾਨ ਹੀ ਬਚ ਜਾਵੇ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਕਾਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਟੋਏ ਟਿੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਰ ਕੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਵੀ ਛੱਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਸੀ, ਨੀਚੇ ਖਾਰ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਖੜ ਗਿਆ ਨੀਚੇ ਤੇ ਛੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਪੰਜੇ ਜੀਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਬੇੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਹਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। सतगुर सिख की करे प्रितपाल, सेवक को गुर सदा दयाल।
सतगुरु अपने सेवक दे नाल हुंदा है। वो सतगुरु कहता है जेड़ा साडी प्रितपाल इहो जे टाइम नहीं करता, वो अपनी ओदी मर्जी है, लेकिन अंदरों कुमार जेड़ा है अंदरों हाथ रखता है, भावें सानू पता ना होवे। मां पुत्र दे मुंह दे उत्तों मक्खियां उड़ाउंदी है, लेकिन पुत्र नूं सुत्ते पए नूं पता नहीं लगदा है की करन लगी हुई है, मेरी किन्नी क परवरिश करदी है। इस करके गुरु साहब सानू दसदे हन, ओए सतगुरु सिर्फ कंचन नहीं कर दिंदा, पारस दे नाल लगण नाल लोहा सोना बनदा है, लेकिन सतगुरु की करदा है, तैनू सचखंड पहुंचा दिंदा है, भव सागर तो पार कर दिंदा है, दुनिया दे विच ही तेरी आके परवरिश करदा है। क्योंकि हजूर महाराज जी दा ये जिहड़ा महीना है पूरा सत्संगां दा चल रहा, ये हजूर महाराज जी के जन्म दिनां दा चल रहा है, इस करके ज्यादा चाहिए सानू साडे सतगुरु की उस्तत होवे। हुण अगे सुनो गुरु हजूर महाराज गुरु अमरदास जी की उपदेश दिंदे ने। हाँ जी, सतगुर मिलिए कंचन होइए जहर की हो रजा, मन मेरे हर हर नाम चेतलाए, सतगुर ते हर पाइए साचा हर सिर समाए। हुण गुरु अमरदास जी महाराज समझाउंदे ने, जिहड़ा नाम जिस नाम नूं प्राप्त करके तू इस भवसागर तो पार हो सकदा है, उहदे नाल चित ला, मन रे हर हर नाम चित लाए। हरि दे नाम दे नाल चित किस तरह लग सकता है? बथेरी कोशिश करते हाँ, रात दिन भगती करन दी भी कोशिश करते हाँ, लेकिन साडा मन जिहड़ा है लज्जत दा आशिक है, सानू भटकाउंदा रहिंदा है। वो कदों कदों बस दे विच आउंदा है, जदों सतगुरु मेहर करके अपनी अकल सानू दे दिंदा है और साडी अकल नूं खत्म कर दिंदा है। तुसीं देखो कृष्ण महाराज जी ने अर्जन नूं उपदेश दिता, अर्जन तू तीर कमान चुक लड़, उन्हें चुकिया, चुक के फिर सुट दिता। कृष्ण महाराज जी कहते हैं, अर्जन की गल है लड़दा नहीं? कहता महाराज कुछ समझ नहीं आउंदा। कृष्ण महाराज जी कहने लगे, अर्जन ये कैसे हो सकता है? अकल तेरी हो, उपदेश मेरा हो और तेरी समझ में कैसे आ सकता है? कहता होर किस तरह आवेगा? कहने लगे अकल भी मेरी हो और उपदेश भी मेरा हो, तद तेरी समझ दे विच आवेगा। सतगुरु दी अकल दिती हुई होवे, उपदेश भी सतगुरु दा होवे, ता समझ दे विच आ सकदा है। जितनी देर अपनी अकल दे घोड़े दौड़ाउंदे रहंदे हां, ये दूर ही दूर जांदे रहंदे हन, सानू एक जगह इकट्ठा नहीं साडा मन हो सकदा। जदों सतगुरु मिहर करदा है, वो अपनी अकल सानू दे दिंदा है, अपनी अकल सानू दे के साडी तवज्जो नू अपनी तरफ खिंच लैंदा है, सानू इस भवसागर तो पार कर दिंदा है, सदा वास्ते सहज दे विच ले जाके समा दिंदा है। तो इस करके इत्थे गुरु साहब ने, गुरु अमरदास जी महाराज जी ने सानू समझाया है, मन मेरे हर हर नाम चित लाए। हरि दे नाम दे नाल चित लाउण दा तरीका किहड़ा है? गुरमुखां ने सानू बड़ी अच्छी तरह समझाउण दी कोशिश की है। गुरु नानक साहब महाराज जी दी बाणी दे विच लिखिया है कि साधु संत महात्मा दी जिहड़ी मूरत हुंदी है, ओनू अपने हिरदे दे विच बसाउण दे नाल मन वस दे विच आ सकदा है। हजूर महाराज हर सत्संग दे विच इहो उपदेश दिया करदे हन कि गुरमुखां दा तसव्वुर, गुरमुखां दी सूरत नूं अपने हिरदे दे विच जमाउण नाल साडा ध्यान एक जगह जम सकदा है। इस करके गुरु नानक साहब महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, गुर की मूरत मन में ध्यान, गुर का शब्द मंत्र मन मान। कहते ने गुरु दे शब्द नूं हिरदे अंदरों जप, कहते ने उन्हां दा जिहड़ा ध्यान है इस जगह दे उत्ते जमा के रख, अपने आप ही तेरा मन ऐसा ऐसा इकट्ठा होके एक जगह ठहर जाएगा। जदों तेरी आत्मा सेल्फलेस स्टेट ऑफ माइंड हो जाएगी, सहज दे विच जाके सदा वास्ते सुख प्राप्त कर लवेगी, फिर इसनूं समुद्र दे किनारे दा पारला किनारा मिल जाएगा, पासा मिल जाएगा, सदा वास्ते भवसागर तो पार हो जाएगी। गुरमुख जद भी आए हन सिर्फ इहो ही उपदेश
ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਉਪਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਏ ਸਾਚਾ, ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਫਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਨੂੰ 5 ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਤਸੰਗੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਰਨਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਧਨਾਤਮਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਏ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਧਨਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? बड़े महाराज जी ने बड़ी अच्छी तरह खोल के उसਨੂੰ बयान किया है। एक अखर जो गुरमुख जापे तिसकी निर्मल सोई, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਧਾਮ ਹਨ। 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਾਵ है, ना पानी है, ना अग्नि है, ना लेख, ना कोई दुनिया का आकार है। उत्थे गुरु साहब कहते हैं सच्चो सच, एक सच दा सच्चो सच्ची वस्तु पई हुई है, जिसनों गुरु नानक साहब महाराज जी ने अपनी बाणी दे विच लिखिया है कि मेरे तजर्बे दे विच वो चीज आ चुकी है। वो की कहते हैं? आद सच, जुगाद सच, है पी सच, नानक होसी भी सच। कहते हैं वो आद विच भी सच सी, हुण भी सच है, और अगे वास्ते भी सच्चा ही सच्चा वो होवेगा। वो सच की खोज करने वास्ते असीं कित्थे जांदे हां? किसी कामल मुरशद साधु संत महात्मा की शरण दे विच जांदे हां। जदों सतगुरु सानू 5 शब्दां दा ग्राउंड दे दिंदा है, रस्ता दे दिंदा है, वो रस्ते दे उत्ते असीं साडी आत्मा फिर चलना शुरू कर दिंदी है। जदों ऐसा ऐसा चलना शुरू कर दिंदी है, उसनूं रस आउंदा है एक शब्द दे उत्ते, दूसरे शब्द से, तीसरे शब्द से, चौथे शब्द से। जदों आखिर नूं सारे शब्दां नूं छड्ड के ऊपर चढ़ जाता है, फिर नंद लाल गोया लिखदा है, हद छड्ड बेहद हो गया पाके भेद प्यारे दा, टुट गया दुख बंधन सारा बंदे उस विचारे दा। कहंदा दुख बंधन ही कट जाता है, आना जाना 84 दा चक्कर ही खत्म हो जाता है। कित्थे जाके? सहज दे विच जाके। उत्थे गुरु अमरदास जी महाराज जी ने बाणी दे विच लिखिया है, कहंदे आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। किथे? सतगुर तां पाया सहज सेती, मन बजिया बधाइयां, राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईयां। कहंदे ने इस जगह दे उत्ते जदों मेरी आत्मा जाके पहुंच गई चौथे पद दे विच। चौथा पद जिहड़ा खोज लैंदा निर्वाण पद, उसनूं गुरमुखां ने किहा है, जिहड़ा उत्थे जाके पहुंच जांदा है वो मुक्त हो जांदा है, रस्ते दे विच मुक्त नहीं हुंदा। कई लोकां दे मन दे विच इह वी ख्याल आउंदा है साडे कि जे सतगुरु नाम दे दिंदा है, असी भगती नहीं करते, सहज दे विच जाके जींदे जी नहीं पहुंचते, कि सानू मुक्ति मिलती है, तो उसकी मालिक की मर्जी है। अगर एक आदमी का साडे पास नौकर लग्या होया है, वो नौकरी करता है, रात दिन हाजिरी तो दिंदा है, लेकिन वो काम कुछ नहीं करता। असी रोज उसनू कहते हाँ भरावा तू काम कर, कुछ ना कुछ तेनू तनख्वाह देनी है, तेनू असी अच्छी चीज देनी है। वो अच्छी चीज नू लैण वास्ते कम तक थोड़ा बहुता उत्थे हाजिरी तो दिंदा है, लेकिन तवज्जो नहीं दिंदा। जदों वो तवज्जो देण लग जाता है तो ऊपर चलिया जाता है। उन्हां दा समझाउणा फर्ज बनता है, लेकिन ये नहीं कि वो उसनूं जे 2 दिन आवे 4 दिन ना आवे उसनूं पूरी तनख्वाह नहीं देवेगा, तो उहदे दिन कट्टे जाते हैं। इस करके गुरमुख दसदे हन सानू भवसागर तो पार तां कीता जाता है, पर एक दिन का जिहड़ा वक्फा है सानू सालां तक दूर लैके चलिया जाता है। इस करके गुरमुख दसदे हन, कहंदे ने श्वास श्वास हर नाम जप श्वास ना विरथा खो। एक श्वास भी तेरा जिहड़ा है वो विरथा ना जावे। कबीर साहब महाराज जी ने तो इत्थे तक लिख दिता 24,000 है खर्च हमेशा आमदन मूल न थीवे। जिस बंदे नूं इतना घाटा सो बंदा क्यों जीवे। जेड़े बंदे नूं इन्ना घाटा पै जांदा होवे वो क्यों जींदा फिरदा है, कि वो इंसान कहांदा है। गुरमुख दसदे हन जब तक साधु दी संगत दे विच नहीं जांदा, ना तेरा कोई दीन है, ना तेरा कोई ईमान है, ना तू भगत कहा सकता है, ना तू इंसान कहा सकता है। इंसान किनू कहा जाता है? गुरमुख दसदे हैं जिहदे अंदर इंसानियत पैदा हो जाए। साडे अंदर इंसानियत कित्थों है? करतूत पशु की मानस जात लोक विचारा करे दिन रात। करतूतां साडियां पशुआं वालियां हन। तुसीं एक खुरली दे उत्ते 10 डंगर बन दिओ, वो एक डंगर दूसरे नूं मारदा है, तीसरे नूं मारदा है। साडे विच किहड़ी कमी है? असीं किहड़ा घट करन लगे होए हां? गुरमुख सानूं दसदे हन डंगरां वालियां तेरियां आदतां
ਦਿੱਤਾ ਹਨ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲੈ, ਵਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੜਫਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਏ ਸਾਚਾ, ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਗੇ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਏ ਸਾਚਾ, ਹਰ ਸਿਉ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤਾਏ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੜੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕੂਕਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਪਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, 10 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, 25 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਠੱਗ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੰਦਰ ਖਲਬਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਰਾਬੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ, ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲਿਜਾਵੇ ਨਾ ਲਿਜਾਵੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਗਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬੇ ਰੰਗ ਮਸੱਲਾ ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਫਰਮਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਫਕਾਰ ਕਦੀਮੀ ਗਲਤੀ ਮੂਲ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਫ ਹੈ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਫੱਟ ਦੇ ਕੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਫਕਾਰ ਕਰੀਬੀ ਕਦੀਮੀ ਗਲਤੀ ਮੂਲ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਚਾੜਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਠੱਗਾਂ, ਚੋਰਾਂ, ਭੈੜਿਆਂ, ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮਹੰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਫਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ, ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ ਕੇ ਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ तो इशारा करके ड्राइवर नूं कार खड़ी कर लई। दो आदमियां दे नाल लग के, यानी हजूर महाराज जी ने कहा इनू जरा खिंच के परे कर दिओ। उन्होंने किनारे दे उत्ते कर दिता। हजूर महाराज फिर कार दे विच बैठ के जाके सत्संग ते पहुंच गए। जदों हजूर महाराज सत्संग घर दे विच जाके पहुंच गए, बाद दे विच ओह शराबी जिहड़ा है अपने साथियां नूं पुछदा है, यारो ये सोहना जिहा सरदार कौन सी, सोहनी चिट्टी दाड़ी वाला, ये की कहंदा सी, इहने मैनूं क्यों इधर खिंच के कर दिता। कहन लगे तैनूं पता नहीं, वह भी शराबी सी। कहंदे तैनूं पता नहीं, ये राधा स्वामियां दा रब सी, रब है राधा स्वामियां दा रब। ओए मैनूं खिंच के परे कर गया राधा स्वामियां दा रब। चलो फिर मैनू रब दे कोल लै चलो, मैनू ठग चोर नूं मैनू शायद बख्श देवे, कुछ किरपा कर देवे। कौन सी ओ? गंगू डाकू सी, जेड़ा गुरदासपुर जिले का नामी डाकू मनिया गया सी। उत्थे दियां थानियां दे विच अज तक उसका नाम दर्ज होया होया है। अज तक लोकां नूं पता है कि एडा वड्डा डाकू सी। उन्हें लखां हज़ारां आदमियां नूं लुटिया सी और कई उन्हें जीवां नूं मारिया होवेगा। इहो जिहा डाकू सी, उसका इनाम रखिया होया सी कि जेड़ा इस नूं पकड़ लवे, जेड़ा इस नूं मार देवे, उसनूं इनाम दिता जावेगा। लेकिन बड़ी पार्टी
ਸੀ? ਕੌਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਕਪਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਗੰਗੂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਡਾਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਗੰਗੂ ਤੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਹੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਸਤਸੰਗੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਕਿ ਹੱਕ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਮਾਸ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਪੀਣਾ, ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਔਗਣ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੀ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਪੀ ਜਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚੋਰੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਪੇਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਖਾਵਾਂਗਾ ਕੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਥੋੜੀ ਚੋਰੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਜੋਗੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦਫਾ ਢਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੰਦੂਕ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੂਕ ਦਵਾਂਗਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਹਟ ਜਾਓ ਪਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਛੇੜਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਹਿਕ ਪਿਆ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਕੜੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਤਕੜੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਫਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਸੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖੁੱਲਦੇ ਵੀ ਔਖੇ ਹਨ। ਖੈਰ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲੀ, ਜਦੋਂ ਪੇਟੀ ਖੋਲੀ ਲੋਹੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਇਨਾਮੀ ਡਾਕੂ ਸੀ, ਛੱਡਦਾ ਸੀ, ਖੋਲ ਲਈ, ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਗੱਠਾ ਕੱਢਿਆ, ਕਾਪੀ ਕੱਢੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ, ਦੂਈ ਕੱਢੀ, 30 ਕੱਢੀ। ਜਦ 30 34 ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਡਾਲਾ ਤਾੜ ਦੇ ਕੇ ਉੱਪਰ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਿਆ। ਡਾਲਾ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਂਹ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਵਿੱਚ ਦਬ ਗਿਆ, ਹਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਥੋੜੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲਾਲਚ ਕਰ ਗਿਆ, ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਜਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਗੰਗੂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਇਆ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਖੈਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੰਗੂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਰਿਆ ਕਰ, ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਬਾਲਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਵਜਨ ਤੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਜਨ ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਫੀਸਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗੰਗੂ ਡਾਕੂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਾਮੀ ਡਾਕੂ ਸੀ, ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਕੂ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਚੋਂ ਦੌੜ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ 7 ਤਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਜਦੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਬਾੜਾ। ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਗੂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕੋਠੜੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਸੰਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਲਵੇਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਟਾਕੀ ਦੀਆਂ 3 ਸੀਖਾਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਨਾ ਨਿਕਲੀ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਛਾ
कहते ने उस वक्त वो जिहड़ा बंदा सी ऑफिसर चलिया गया और उसनों फांसी का हुक्म होया। फांसी के तख्ते उत्ते चढ़न वास्ते उसनों लिजाया गया। जिस वक्त फांसी के तख्ते के नजदीक लिजा के खड़ा किया, उन्होंने पूछया तैनू की चाहिए बई। आम एक कानून है गौरमेंट का, जिसनों फांसी दी जाती है, उन्होंने पूछया जाता है कि भरावा तेन खाण नूं पैं पीण नूं कुछ किसी नूं मिलण नूं तेरा दिल करता है? कहता किसी नूं नहीं मिलना, बस एक मेरी अर्ज है वो मेरी पूरी कर दिओ। कहने लगे दस। कहता मेरा मृतक शरीर मेरे मुर्शद दे चरणों में ले जाओ ब्यास। अच्छा होर? कहता एक होर अर्ज है। वो की? कहता जितने बंदे तुसी खड़े हो मेरे सतगुरु दे दर्शन कर आए हो एक एक बार। सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ चेतावनी दे के जिस तरह लाड़ा शंगारी हुई घोड़ी के उत्ते चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ के राधा स्वामी बुलाई काल दे विच तंद पाउण लगे, कहना मैं आपे ही पा लवांगा, कोई वाह खास गल नहीं है। सतगुरु ने याद करता हुआ सचखंड दे विच जाके पहुंच गया। इस तरह सतगुरु जीवन इस भवसागर दे विचों ठग्गां चोरां यारां नूं पार करने वास्ते आउंदा है। असीं सतगुरु दा की देण दे सकदे हां? इस करके इत्थे गुरु साहब गुरु अमरदास जी महाराज इसे करके बार बार अपने सतगुरु की उस्तत करते हैं, बार बार सतगुरु नूं सुणाउंदे हन। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने तो इसे करके बाणी दे विच जगह जगह लिखिया है, गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। तेरा कौन है गुरु ते बगैर? जेड़े कुटुंब नूं पालदा फिरदा है, जिन्हां दे मगर लग्या फिरदा है, इन्हां ते पुछ के देख तेरा कोई अंत नूं संगी साथी है? गुरमुख दसदे हन जिथे लेखा पत्ता मंगिया जाएगा उत्थे भरावा इन्हां ने किसे ने तेरा संग नहीं देना, उत्थे सिर्फ सतगुरु तेरे नाल होवेगा। तो इस करके हजूर गुरु अमरदास जी महाराज इस बाणी दे विच सानू प्यार नाल समझाउंदे हन। अगे सुणो किस तरह तुकां दे विच दसदे ने। हां जी, सतगुरु ते ज्ञान उपजा ताए संसार जाए, सतगुरु ते हर बूझिया गर्भ जो नहीं पाए। हुण गुरु साहब जी सानू चंगी तरह दसदे हन कि भरावा जदों सतगुरु कामल मुर्शद मिल जाता है, इस चीज की शर्त है कि तैनू फिर गर्भ जूनी नहीं मिलेगी। कबीर साहब महाराज जी ने विच ग्रंथ दे विच भी इहो ही लिखिया है। कबीर साहब महाराज कहते हैं, सोना काही ना लगे लोहा गुण ना खाए, बुरा भला जो गुरु भगत कमू नरक ना जाए। कहते ने नरका तो वो छुट जाता है, बल्कि इत्थे तक बड़े महाराज जी ने लिखिया है जदों कामल मुर्शद दे एक बार दर्शन किसी नूं हो जाते हैं, वो 84 दे जेल खाने चों छुट जाता है, उन्होंने फिर इंसान का जामा मिलता है और इंसान का जामा प्राप्त करने तो बाद जो फिर उसनों नाम की प्राप्ति भी हो जाती है। इस करके गुरमुख दसदे हैं होर नहीं जे ज्यादा नहीं तो साधु संत महात्मा की संगत जरूर कर लेनी चाहिए है। फिर इस करके कामल मुर्शद जिन्होंने मिल गया ओदा तो पिंड ही तर जाता है, वो सतगुरु का पिंड तर जाता है, उस शहर के कुत्ते भी तर जाते हैं। मिसाल है हजूर महाराज जी की। वड्डे महाराज बाबा सावन सिंह जी महाराज एक दफा घुमाना सत्संग फरमाउण वास्ते गए। जदों उत्थे गए उत्थे दे जिमीदारां ने उत्थे दे पिंड दे लोकां ने फुलकारियां, पुराने जमाने दे विच बीबियां फुलकारियां उपर लिया करदियां सी, उन्होंने फुलकारियां सारे अगे तक बिछा दित्तियां, सारा रस्ता ही ढक दिता, गलीचे बिछा दिते। हजूर महाराज जिस वक्त उतर के चले, हजूर महाराज जी दे अखां दे विचों हंझू गिरन लग गए। अपने मुर्शद दे वो पिंड दे विच अज चले जा रहे ने। जदों अपने मुर्शद नूं याद कीता, अखां दे विचों टप टप करके हंझू गिरदे सी। कहंदे हन सारे जिमीदार उत्थे दे पिंड दे लोग हजूर महाराज जी दे नाल चले जांदे, गल्लां करदे हन। हजूर आप दे अगे अज असीं एक अर्ज करनी चाहुंदे हां। हजूर महाराज जी ने कहा दसो की करनी चाहुंदे हो? कहंदे सच्चे पातशाह पहली गल तां इह है कि इत्थे बाबा जैमल सिंह जी महाराज जी दा जिहड़ा मकान बनया होया है, असीं चाहुंदे हां इस नूं ढा के पक्का सोहना सुंदर बना दईए। हजूर महाराज जी कहण लगे बई गल ये है, दब के गला रुक गया हजूर महाराज जी दा। कहण लगे सुनो, ये जिहड़ा मकान है मेरा दिल चाहुंदा है
मैं अगर मैनू मेरा दिल पुछो मैं तो इस नू की नहीं कर सकता, मैं इसनू सोने का बना देवां, पर अंदरों इजाजत नहीं सतगुरु दिंदा। इसे तरह रहेगा ये नहीं कहता, ये किते नहीं जाता। हजूर महाराज ठीक है जिस तरह तुसी ये भी हुक्म तुहाडा ठीक है, पर एक होर भी अर्ज है। हजूर महाराज कहने लगे दसो, कहते सच्चे पातशाह असीं देखो ज्यादा टाइम साडा डेरे भी लग जाता है ते कुछ ऐसी खेतीबाड़ी का भी काम करते हाँ, सातों सिमरन नहीं किया जाता सच्चे पातशाह। हजूर महाराज कहने लगे कोई गल नहीं, सिमरन करो या ना करो, मैं तो तुहाडे पिंड दे कुत्तियां नूं भी धार देवांगा। सतगुरु जिहड़ा कामल मुर्शिद हुंदा है, देख लो एक अखर जो गुरमुख जापे तिसकी निर्मल सोई, कहंदे ने इत्थे दे तां कुत्ते भी तर जाने ने। सतगुरु ने जिस चीज दे उत्ते दृष्टि पाई, नजर पाई, जिथे सतगुरु गया, गुरमुख ताही तां गुरु नानक देव जी महाराज जी ने लिखिया है कि जिथे सतगुरु जा बैठदा है वो जगह ही सुहावी हो जाती है, वो जगह नूं भाग लग जाते हैं, उन्हां दे जामे दी हवा लगन नाल नरकां ठंडियां हो जांदियां हन। तुसीं मिसालां कायम हन, इसे करके गुरमुख सानूं बड़े प्यार नाल दसदे हन जिथे सतगुरु आ जावे। होर तां होर मैं कहना सतगुरु जिथे इत्थे पंजाब दे विच आए हन, शायद पंजाब सारे नूं ही तार के लै जाण। गुरमुख दे अंदर ताकत है। गुरु नानक साहब महाराज जी दी बाणी दे विच लिखिया है कि एक जामे दे विच जदों सतगुरु आउंदा है करोड़ां जीवां नूं भवसागर तों पार करके लै जांदा है। और हजूर महाराज बाबा सावण सिंह जी महाराज जी दे रसाले विच लिखिया है कि 36 करोड़ जीवां नूं एक जामे दे विच एक सतगुरु लिजा सकदा है। सतगुरु इस भवसागर तों पार करन वास्ते इंसान दे जामे विच आउंदा है। ज्यादा गल की है गुरु साहब, ये भाई गर्भ जोनी ना पाए, कहंदे ने सतगुरु तो हरि दी प्राप्ति हुंदी है, और गर्भ जोनी दे विच बार-बार 84 दे जेल खाने दे विच नहीं आउंदा जीव, इस भवसागर तो पार हो जाता है। ये सतगुरु दी उपमा है, ये सतगुरु दे अंदर ताकत हुंदी है। देखो गुरु अमर साहब महाराज किस तरह समझाते हैं, अगे सुनो हुण। हाँ जी, सतगुरु ते हर बूझिए गर्भ जोनी नहीं पाए, गौर प्रसादी जीवत मरे, मर जीव शब्द कमाए, मुक्त द्वारा सोई पाए, जे विचो आप गवाए। हजूर महाराज जी हर चीज का फैसला दिंदे हन। कहंदे ने गुर प्रसादी जीवत मरे, कहंदे ने गुरु दे शब्द नूं कमा के जिंदे जी ही मर जाता है। इसी करके कबीर साहब महाराज जी ने लिखा है मुंह मरने का चाव है, मैनू चाव लग्या रहता है। जदों ये जिंदे जी मर जाता है इसनूं कोई तकलीफ ही नहीं हुंदी, आत्मा जिहड़ी इसदी परमात्मा दे नाल जाके जुड़ जाती है। ये फिर जन्म मरण के चक्रां दे विचों निकल ही जाता है, इहनूं भय नहीं रहिंदा, भावें तत्तियां तवियां दे उत्ते बिठा दिओ, भावें कीमा कीमा कर दिओ। सो इस करके इत्थे गुरु साहब सानूं समझाउंदे हन मुक्त द्वारा सोई पाए, कहंदे नाल शर्त भी है, पर मुक्ति का दरवाजा कदों पाउंदा है, कहंदे ने जे विचों आप गवाए, जे अपना आप छड्ड दवे। असीं साधुआं दी संगत दे विच जाके भी वीरवार दे सत्संग ते हजूर महाराज जी ने फरमाया सी, किड्डे जोर दी बारिश पैंदी सी, हजूर महाराज सत्संग करन लगे हुए सी। हजूर महाराज जी ने फरमाया सी, कहण लगे जे देख लो साधुआं दी संगत दे विच जाके गुरमुखां दे पास जाके भी असीं वडियाई नहीं छड्डदे, अपनी होमे नहीं छड्डदे, क्योंकि होमे दा काल ग्राउंड बनाया होया है, जिहड़ा इस ग्राउंड दे उत्ते फिरदा है बिना होमे ते कोई एक जीव नहीं इत्थे रह सकदा। इस करके गुरमुख दसदे हन जदों सतगुरु दे पास चलिया जा भरावा, उत्थे कम से कम तैनूं मैं मेरी छड्डनी चाहिदी है, होमे छड्डनी चाहिदी है। जदों तू होमे छड्ड दवेंगा तू जींदे जी ही मुक्त हो जावेंगा। इसे दा नाम मुक्ति है। सारियां नालों वड्डी बीमारी कादी है? मैं मेरी दी होमे दी है। अगर साडी होमे दूर हो जावे असीं इस भवसागर तो दूर हो सकते हाँ। गुरु नानक साहब ने शर्त रखी है इस गल दी। गुरु नानक साहब महाराज जी बल्कि इत्थे तक
बाणी दे विच लिखदे हन, होमे धीर ग्रोभ है दारू पी समाए, कृपा करे जे अपनी गुर का शब्द कमाए। कहंदे ने जेकर कृपा कर दवे सतगुरु उस शब्द नूं असीं कमाईए, गुरु साहब दसदे हन ते साडे अंदरों होमे ऐसा ऐसा निकल जाती है। होमे जिहड़ी है ये मैल दा नखार है, जिहड़ी होमे दी मैल जिहड़ी है वो शब्द उसका नखार है। जदों वो नखार पा दिता जाता है ऐसा ऐसा होमे चलती चली जाती है, खत्म होंदी चली जाती है। तो इस करके हर एक दे तुसीं किसे ते पुछ के देखो, हर एक शिकायत करता है मेरे अंदरों काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं दूर होंदे, मैं सिमरन से तां बथेरा बैठता हाँ पर मेरी लिव नहीं लगती। जे पुछो किसी नूं कितनी देर बैठता है, 10-15 मिनट तां जी बैठ ही जाइदा रोजाना, जे थोड़ा नहीं। देख लो गुरमुख कितनी कितनी देर 2.5 घंटे का हुक्म दे के भेजते हैं, असीं 2.5 मिनट नहीं बैठने की कोशिश करते, फिर साडे अंदरों होमे किस तरह दूर हो सकती है। हजूर महाराज जी ने, सरदार बहादुर महाराज जी ने एक जगह लिखिया है, आप दसदे हैं जेकर कोई आदमी 2.5 घंटे बिल्कुल सिमरन ना करे, बैठा ही रहे, अपनी चौकड़ी जमा के ड्यूटी पूरी करता रहे, तां भी सतगुरु बख्श दिंदा है। कदे ना कदे उसका अंदरों लिव लग जाती है, ताकी खुल जाती है। तो इस करके असीं तो सेकंड बैठने की कोशिश नहीं करते, सारी सारी रात असीं घुराड़े मार के सौंदे हाँ और फिर मिलना किनू चाहुंदे हाँ, परमात्मा नूं मिलना चाहुंदे हाँ, जिस तो साडी आत्मा जुगा जगंतरा तो विछड़ी हुई है, जिस जगह तो विछड़ के कितने जाल दे विच फसी हुई है। इस जाल नूं कट्टिया किस तरह जा सकता है। तो इस करके गुरमुख दसदे हैं कि साधु संत महात्मा की संगत के बगैर भरावा तेरा कोई जीवन नहीं है। अगर साधु की संगत मिल गई है तो अपने अंदरों होमे कढ़न की कोशिश कर, मैं मेरी कढ़न की कोशिश कर। हाँ जी। मुक्त द्वारा सोई पाए जे विचो आप गवाए, गौर प्रसादी शिवगार जमे विचो सकत गवाए, अचिर चरे बेक बद पाए, तुरखा पुरा का मिला। हजूर महाराज जी दसते ने कि गुरमुखां दे शब्द नूं प्राप्त करके असीं सहस्त्र कमल दे विच जाके पहुंच जाते हाँ, शिव घर दे विच जाके पहुंचते हाँ। शिव घर जम्मे विचों आप गवाए सख्त गवाए, कहंदे ने विचों फिर साडे अंदरों जिहड़ी होमे दी मैल है, जिहड़ी माया साडे अंदर दखल देण लगी हुई है, ये दूर हो जाती है। माया दा दखल कित्थे तक है? ब्रह्म तक है। ब्रह्म तो उपर जदों आत्मा चली जाती है इहदा हथ उपर नहीं पहुंचता। फिर गुरु साहब दसदे हन उत्थे जाके आत्मा साडी अडोल हो जाती है, लेख शेप तो रहत हो जाती है, सदा वास्ते सुख प्राप्त करके बैठ जाती है। इस करके गुरु साहब दसते ने गुर प्रसादी शिव कर जम्मे विचों सख्त गवाए, अचर चरे विवेक बुद्ध पाए। विवेक कहते ने ज्ञान नूं, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जदों विवेक बुद्धि साडी हो जाती है फिर की हुंदा है? कहते ने मुक्ति मिल जाती है। विवेक किहड़ा विवेक? बाहरला विवेक नहीं। इत्थे गुरु साहब ने बयान किया, इत्थे आलम फाजल बन गया, गुणी ज्ञानी बन गया, अहंकार विच भर गया, उच्चा गर्दन करके चलनी शुरू कर दित्ती। इस तरह गुरु साहब दसते हैं ये कोई ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान जिहड़ा है बाहरला ज्ञान है। जिहड़ा अंदरला ज्ञान है, अंदर ज्ञान कित्थे है? गुरु साहब दसते हैं इस जगह दा उत्ते जिहड़ा भंडारा भरिया होया है, अगर उस भंडारे की तैनूं चाबी मिल जाती है तो सच्चा ज्ञानी बन सकता है, सच्चा गुरमुख बन सकता है। उत्थे जाके गुरमुख बनते हैं। जदों उत्थे पहुंच जाते हैं गुरु साहब दसते हैं अचर चरे विवेक बुद्ध पाए, पुरखे पुरख मलाए। कहते ने वो पुरख परमात्मा अकाल पुरख दे नाल साडा मेल हो गया, अज आना जाना चुक गया। अज सतगुरु की गोद दे विच जाके बैठ गए। कदों? जदों विवेक बुद्ध प्राप्त हुई, जदों असीं अपने जीवन नूं ढाल के सदा वास्ते काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो रहत हो गए, तां जाके वो सुख प्राप्त हुंदा है। तो इस करके गुरु अमरदेव जी महाराज जी समझाउंदे हन, तू भरावा सतगुरु तो शब्द प्राप्त करके मेहनत कर, रात दिन भगती कर, भगती नाल तैनूं सुख प्राप्त होना है।
ना कि तू नाम लेके बैठ जावे, बल्कि बड़े महाराज जी इस गल ते बड़े जोर दिया करते सी। कहते डॉक्टर कोलों दवाई लिजा के जेकर लिजा के रखी देनी है, खानी नहीं तो भरावो देख लो किस तरह आराम आ सकता है। कई बीबियां उठ के कह दिया करदियां सी, कई बंदे उठ के कह दिया करते सी, हजूर महाराज जी जे घर दवाई पई हो कदे ना कदे खाई ही जाती है चक के। फिर महाराज जी क्या करते थे, ठीक है जो कदे ना कदे खाओगे तो थोड़ा बहुत आराम भी हो जाया करेगा। इसी तरह असी जदों दुख होंदा है, कोई मुश्किल होंदी है, सिर दर्द होंदा है, उदों ही दवाई नूं खांदे हां, नहीं तो सतगुरु नूं कोई याद ही नहीं करता। गुरु साहब दसदे हन रात दिन सतगुरु ने हिरदे दे विच वसा के रख, तां तैनूं मुक्ति प्राप्त होवेगी, तां तेरा रोग जिहड़ा होवेगा है, जिहड़ी तैनूं बीमारी चिमड़ी हुई है ना दूर हो सकती है। सो इस करके हजूर दसदे बीमारी नूं दूर करने वास्ते ये दवाई खाण की जरूरत है। हाँ जी, अचर चरे बेक बदा पाए पुरखा पुरा का मिला पातुरबादी संसार अचेत है चले नूल गवाए लाहा हर सत संगत पाइया कर्मी पाले गुरु अमरदास जी महाराज दसते ने ये जितना भी संसार है दुनियावी कम्मां दे विच तातरबाजी दे विच संसारी कम्मां दे विच उलझ के बड़ा चेत रहिंदा है। कहंदे हन असीं बड़े अच्छे कर्म करन लगे हुए हां। गुरु साहब दसदे हन कहंदे चले मूल गवाए, कहंदे तू अपना मूल खत्म करन लगया होया है। चाहे किसी नूं पुछो आलम फाज नूं या पढ़े लिखे नूं या गुणी ज्ञानी नूं, किसी वकील दे कोल जाके पूछिए, कह दईए कि भरावा जिहड़ा काम तैं दस्सिया सी साडा फटाफट हो गया। अच्छा मैं तुहानूं पहलां ही दस्सिया सी, मेरा कानून तां ऐसा है कि मैं बड़े बड़े नूं फेल करके रख दिंदा हाँ। कोई मरीज डॉक्टर दे कोल चलिया जावे, उन्होंने कहे डॉक्टर साहब तुहाडी दवाई बड़ी अच्छी रही, मैनूं ठीक फिट बैठ गई, तो ना मेरे को तो कोई मरीज एवं गया ही नहीं, मैं सब नूं ठीक कर दिंदा हाँ। जे किसी सेठ शाहूकार जाके पूछिए ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ मैं कल ਜਿਹੜਾ सौदा ਕੀਤਾ ਸੀ बड़ा अच्छा सौदा ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ पता ਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ फायदा हो जाना है। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ मैं तो ਹਜ਼ਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ 5,000 20,000 ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਹਕੀਕਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਢੂੰਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਪਾਸ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੋਂ ਗੁਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਲਾਹਾ ਹਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਾਈਏ ਕਰਮੀ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਮੀ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੱਲਾ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਖਣਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਹਾ ਹਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਪਾਲੇ ਪਾਏ ਸਤ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕਿਨੋ ਨਾ ਪਾਇਆ मन में कार दे विचार वड पागी गर पाया पव जल उतरे पार।
गुरु अमरदास जी महाराज दसते ने, कहते मता किसी के मन के विच ख्याल होवे कि गुरु तो बगैर मैं मुक्ति प्राप्त कर लवांगा, मालिक निरंकार नूं वापस जाके मिल लवांगा। गुरु अमरदास जी महाराज इस चीज की पुष्टि करते हैं, पक्का करके दसते हैं। कहते ने बिन, कहते ने सतगुर बिन किने ना पाया मन, देखो कर विचार, कहते ने विचार करके देखो अज तक किसी ने सतगुरु तो बगैर मालिक नूं पाया है, किसी कामल मुर्शिद की संगत तो बगैर पाया है। गुरमुख तां इत्थे तक लिखते हैं, मत को भरम भुले संसार, गुर बिन कोई ना उतर सपार। कहते ने गुरु ते बगैर कोई इस भवसागर तो पार नहीं उतर सकता। कहते ने गुरु ही है जिहड़ा इस भवसागर तो पार ले जाके सचखंड दे विच छड्ड सकता है। इस करके हजूर महाराज दसदे ने, पर बड़ भागी गुर पाया भवजल उतरे पार। कहते ने पर एक गल ये भी है, जे बड़े भाग होण तां सतगुरु मिलता है, नहीं तो भटकदा ही जीव फिरदा रहिंदा, सलाह ही करदा रह जांदा। बड़े महाराज दे रसाले च एक जगह लिखिआ, कहंदे बीवी रोज ही कह दिंदी है चले तुसीं सत्संग ते चलो, कहंदा जे तां सर्दी का महीना कोट नवां बन के आ जाए ना फिर चलांगे। वो कोट बनाउंदा बनाउंदा ही आप ही कोट बन गया, खत्म ही हो गया बेचारा। इसे करके एक दिन इसने खत्म ही हो जाना है। इस करके गुरु साहब दसदे हैं कि तू साधु संत महात्मा दी भज के शरण दे विच जा, जीवन नूं एवें बर्बाद ना कर। इस गुरु साहब ने ये पक्का सानूं समझा दिता है। ये दावा करते हैं आप, कहंदे ने सतगुर बिन किने ना पाया मन, देखो कर विचार। गुरु नानक साहब महाराज जी ने एक जगह होर भी लिखिया है, कहंदे ने हीरा लाल अमोलक बहु भारी, बिन गाहिक मीका काखा, रतन गाहक गुर साधु देखियो, तब रतन बकान्यो लाखा, मेरे मन गुप्त हीर हर राखा, गुर मिलिए हीर पराखा। कहने ने जदों गुरु मिल जाएगा तां ही हीरे की परख होगी। तुसीं देखो एक ढोल लुकदा भरिया होया होवे, उहदे विच हीरा सुट दिता जाए, उसकी कीमत एक खड़ा होकर डंडा लैके उत्थे लोकां नूं इकट्ठा करके उसकी कीमत 1 लाख रुपया पाउण लग जाए। अगला कहेगा लुकदा भरिया होया ड्रम है, इहदे विच है की, इहदे विच रखिया होया की है, कोई उसकी कीमत पाउण वास्ते तैयार है, भावें उच्ची उच्ची कूट के कही जाए इहदे विच हीरा रखिया होया है। जद तक हीरे नूं धो के साफ करके उहदे उत्ते ना चिलकदा होया रख दिता जाए, जद तक तसल्ली नहीं आउंदी। वो कौन कढ के दसदा है? गुर काढ तली दिखलाया, सतगुरु कढ के तली दे उत्ते रख के दस दिंदा है, ऐ हीरा है। वो हीरे दी गंढ बनी हुई है। गुरु साहब पीखा साहब कहते हैं, पीखा भुखा तो नहीं सबकी गठड़ी लाल, गिरा खोल नहीं जानते तांते पे कंगाल। हीरा मोलक साडी काया दे अंदर रखिया होया है, उस हीरे की कीमत कौन पा सकता है? गुरमुख दसदे हैं जदों साधु संत महात्मा की संगत दे विच जांदे हां, वो जौहरी दसदे हैं वो हीरा बहुत महंगा है, ये हीरे की संभाल कर। इस करके हजूर महाराज इस बार बार समझाते हैं, मता किसी के मन के ख्याल होवे कि गुरु तो बगैर मालिक की प्राप्ति हो सकती है, गुरु तो बगैर मालिक की प्राप्ति होने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। हाँ जी, वड पागे गोर पाया पाव जल तेरे पार, हर 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 नाम हर एक है, हर हर नाम आधार, कृपा करो गोरा मेलो हर दियो पाओ मोकदार। गुरु अमरदास जी महाराज इस आलम के उत्ते नजर मारते हुए फिर सतगुरु अकाल पुरख के अगे प्रार्थना करते हैं, कहते ने ऐ मालिक तू कृपा कर दे, असीं गए हुए जीव निकम्मे जीवां दे उत्ते दया करके सानू सतगुरु मिल दे। गुरु साहब कहते ने हर नामा हर टेक है, हर हर नाम आधार, कृपा करो गुर मेल हर, जियो पाइए मोख द्वार। कृपा कर तू सानू मेहर कर ताकि तेरे नाल असीं सतगुरु दे नाल ला के तेनों जाके मिल लईए। इसे करके होर जगह भी एक जगह आपने किया है, बाप कर
ठाकर हम सिद्धि गुण अवगुण ना पछाणे। कहते ने जदों सतगुरु मिलिया उन्हें मेहर कर दी, साडा गुण और अवगुण नहीं देखिया तू गंदा सी कि निकम्मा सी। उन्हें पता है ये अंदर चिटाई रखी हुई है, ये अंदर सफेदी है, ये अंदर लाल पिया हुआ है। उन्हें पता है ऊपर ये गुलाब चढ़े हुए हैं, इन्होंने गुलाबों मैं उतार सकता हाँ, वो डाला ला सकता हाँ। जब डाला ला के रख दिता ढक्कन उपरों खुल गया, ये अंदरों डलक पैंदी है, अंदरों रोशन हो जाती है वस्तु। जब रोशन हो जाती है फिर की होता है, जो जल में जल आए खटाना, क्यों ज्योति संग ज्योत समाना। गवन मिट गया, 84 का चक्कर खत्म हो गया, अंदर लाइट पैदा हो गई, जिसमें गुरु साहब ने क्या अंतर ज्योत निरंतर वाणी सच्चे साहब से बुलाई। हम सच्चे सौर दे जाके समा गया, उत्ते जाके कहना बहुत हम काहे आवेंगे, आवन जाना हुक्म किसे का हुक्म बूझ समावेंगे। जब चूके पंज धात की रचना मन ऐसे सुन समावेंगे, मिले समदर्शी पवन रूप हो जावेंगे। कहता आकार ही खत्म हो गया, हम सतगुरु दे मालिक दे विच जाके समा गए। कदों जब सतगुरु पूरा मिल गया, कामल मुर्शद मिल गया। हाँ जी, कृपा करो गुरु मेरे हर दियो, पाओ मोखदार मस्तक लाट लिखिया तोर ठाकर तुम्हारा जाए, नानक से जन पूरे में होए, जिन हर पारा साहब ने सारी डिटेल पेश करके अखीर दे विच बड़ा सुंदर फैसला दिता है। आपने क्या सी कर्म होए ता सतगुर पाइए बिन करने पाया ना जाए। हुण सतगुरु हजूर महाराज जी सानू समझाउंदे हन, मस्तक ललाट लिखिया ठाकर मिट ना जाए। कहंदे ने हुण सतगुरु दे दरजान दा परवाना मिल गया, तेरे मत्थे दे विच मोहर लग गई है। कहंदे ने कोई लेट ही नहीं सकदा, ललाट मस्तक दे विच लिखिया गया। कहंदे ने फिर की होया, नानक से जन पूर्ण होए जिन हर पाना पाए। कहंदे ने पूरे हो गए जिन्होंने हरि ने मालिक ने बख्शिश कर दी, मेहर कर दी, अपने नाल बुला लए। जेड़े नहीं उस पासे गए अधीका दे विच तड़फदे रहे, कहंदे ने कुछ भी प्राप्त नहीं होया। गुरु साहब दसदे साधु संत महात्मा की संगत दे विच जा, कामल मुर्शिद की संगत दे विच जा, जीवन तेरा वधीत हो जाएगा। तेनों कंत सियाणा जब मिल जाएगा फिर सुख प्राप्त होगा। तो इस करके जिहड़ियां रूहां वो कंत नहीं मिलिया, वो मालिक नहीं मिलिया, वो तड़फदियां हैं। बल्कि इत्थे तक गुरु नानक साहब महाराज जी ने एक जगह लिखा है, काजल फुल तंबोल रस लै धन किया श्रृंगार, सेजे कंत ना आयो ऐवे पिया विकार। कहते जो परमात्मा ना मिलिया साडा श्रृंगार खूबसूरती किसे कम नहीं है। सूविए सुहा वेश मन तां कर लगे प्यार, सुहे वेश फिर किने ना पायो मन मुख मुगध भुली गवार। तू मन मुख है भुली हुई है गवार है, सोने वेश नाल नहीं मिलता। तो कदों मिलता है, आप गवाइए तां सौ पाइए अमर कैसी चितराइयां नाल नहीं मिलता। गुरु साहब दसदे हैं अपना आप मिटाउना पैंदा है, हस्ती ने खत्म करना पैंदा है, तां किते जाके परमात्मा सानू मिलता है। इसे करके हजूर महाराज जी ने ये सारा फैसला करके अखीर दे के फैसला दिता है। कहते ने मस्तक ललाट लिखिया ठाकर है। हुण ठाकर दे मिलन दी जिहड़ी मोहर आ किने ठाकर नहीं लाई, वो भी ठाकर है, गुरु भी ठाकर है। क्योंकि गुरु नानक साहब महाराज जी की बाणी दे विच आउंदा गुरु गोबिंद गोबिंद गुरु है नानक भेद ना पाई। बल्कि इत्थे तक गुरु ग्रंथ साहब दे विच बाणी दे विच आउंदा है कि गुरु दे और मालिक दे निरंकार दे विच राही जिन्ना फर्क नहीं हुंदा, वो गुरु हुंदा है, वही मालिक हुंदा है। कबीर साहब महाराज जी की हिस्ट्री पढ़ के पता लगता है, जब वो सेवक कोई धुर धाम दे विच जाके पहुंची तो कबीर साहब बैठे हुए हैं। फिर कहते कबीर साहब ने कहली है महाराज बाहर ही दस देना सी, नहीं परमात्मा हाँ। कबीर साहब कह लगे तेन तसल्ली नहीं सी आनी। सो सतगुरु उस मालिक दे कोलों उस सच्चे समुंदर दी लहर होंदे हैं, जो जल दूर तक आउंदी है और
फिर वापस जाके समुद्र में समा जाती है। इस तरह सतगुरु जिहड़ा हुंदा है वो समुद्र की लहर बन के आता है, लहर हुंदा है समुद्र का और लहर का एको ही रिश्ता आता है। इस करके गुरु साहब दसदे ने, कहंदे ने गुरु पूरा जिन्होंने मिल जाता है वो लहर के सुपुर्द हो जाता है, लहर उसमें जाके समुद्र के सुपुर्द कर देती है, गल खत्म हो जाती है। तो इस करके गुरु अमरदास जी महाराज जी ने जो कुछ सानू अज समझाया है, बड़ा उच्चा गुरु अमरदास जी महाराज जी का उपदेश है। सानू भी इन्हां दे कहण दे मुताबिक अपने जीवन में चलना चाहिए है। मस्तक मिलाए तोर ठाकर में सुना न जाए, नानक से जन पूरन हो तुम्हारा पाम पाए।